to Game Set Match. Another day, another show and another match. Obviously PSL 7 में कल खेला गया, कल हुआ एक और मुकाबला और कुछ खास डिफरेंस नहीं हुआ जो एक्सपेक्टेड था, कुछ इसी तरह हुआ। मुल्तान सुल्तान कराची का था मुकाबला, मुल्तान सुल्तान ने बाजी मारी और जीत हुई। मगर कल के मैच पे तो बात होगी, आज के मैच पे बात होगी, मगर आज सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट मज़ेदार डिस्कशन होगी वो होगी जो हमारे मेहमान हमें ज्वाइन इन करेंगे। और हमारे मेहमान जिनकी मैं इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जो मेहमान हैं वो शायद हम जब से बचपन से क्रिकेट देख रहे हैं तब से हम उनको देख रहे हैं और उस वक्त शायद उनको पता था कि मैं ग्लैडिएटर बनूंगा, बिकॉज जब वो मैदान में आते थे तो उसी तरह ग्लैडिएटर की तरह आते थे। सर विवियन रिचर्ड्स हमारे साथ आज मौजूद होंगे, सो उनसे होगी आज गुफ्तगू और उसके बाद यासिर अरफात भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सो मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। सर विव रिचर्ड्स आ रहे हैं। लिटरली स्पीकिंग आई एम कंफ्यूज्ड राइट नाउ। और मैं देखे मेरे मुंह से इवनिंग की जगह मॉर्निंग निकल गया। तो वैसे विव रिचर्ड्स साहब हमारे साथ मौजूद हैं सवेरा। आई थिंक वी शुड कनेक्ट विद हिम। बिल्कुल जी। सो वीड से वेलकम टू सर विव रिचर्ड्स। सर वेलकम टू द शो। Okay. Hi sir and welcome to the show. Thank you so much. Viv, first of all, thanks a lot for you supporting PSL so much. You've been there with the Gladiators since day one. And I just wanted to ask what brings you back on and on to Pakistan, the kind of support that you've given to Pakistan cricket, the kind of support that you've given to cricket coming back to Pakistan. What brings you back? Well, I've got some good friends over here. I would have played against a lot of good guys over the years. And I've always enjoyed touring and especially coming to these parts. When I was given an opportunity to be part of the Quetta Gladiators, I felt it was an opportunity that I could not miss because as you can see and everyone knows, we are a family. Even though we lose at times, sometimes we still try and pick ourselves up and get ourselves back in the lane where we can do some winning again. So sir, Viv, you travel around the world, you watch cricket being played almost all over the world, you see a lot of franchise cricket. How do you rate the standard of cricket at PSL when you compare it with the other leagues around the world? But that is why I'm here, because I believe it's one of the highly contested leagues, T20 leagues that you can find. The individuals that you see on show on a regular basis, it is just magnificent to see. And as a sport-loving individual, and more so the game of cricket, it is just a joy to see such talent on show. When we talk about your style of playing, when you used to play, that courage, that thing, you were ahead of your time. You were playing like a T20 player with all that courage and all that power and all that confidence. But nowadays, when I ask you for T20 and being that courageful, what do you think are the most important aspects? Like, is it the courage? Is it the mindset? Or is it the technically strong skills that a player should be to be good and successful in T20 format? Well, I think I enjoy more than anything else. I always believe that batsmanship would always be the same, regardless of whatever period that you would have played. I also believe in the fast bowling department that they all would remain the same. One of the things that I'm highly impressed with is just the power shots. Maybe you could say the bats are so much better. The feeling is of a magnificent standard at times. Some of the catches that you see, it's just mind-blowing. So these things, I believe, some of the improvements that the game would have made over the years. Just high-quality feeling and catching at times. And I often wonder what if Sir Viv was playing T20 cricket at this age. I mean, it would have been the most difficult thing for any batsman in the world to take this man off the peak. Yeah. And for any player, I mean, because he would have been the #1. Sir, do you really... At times, do you ever regret the fact, oh, I wish I was playing cricket at this age? I mean, this is my kind of cricket and I really love it. Do you ever think that way, sir? There's no regret. There's no regret whatsoever. I'm one of these individuals who likes it because, you know, one who would have played over the years, many years, and at a time when you didn't have all this stuff as the money and stuff like that. Yeah. But I'm never an individual to gloat about what guys are getting today or anything like that. I can only encourage
And one of the things that I hope that they do not forget is the fact that they were pioneers before T20 came. And this is why you have T20, and this is why we keep on improving where the game is concerned, because to me, it is, I love the sport, and I'm just glad to see the individuals of today earning the money that they're earning. I think it was long overdue, and I'm all in support of individuals doing, so long as you can come and give up your best and be as professional as you can be, because this is what you do when you know you're earning good money. Exactly. Sir, if we talk about you and Quetta Gladiator, we have seen the bond, we have seen you supporting Quetta Gladiator, owning Quetta Gladiator, being in the dugout, enjoying every moment. If I talk about Sarfaraz Ahmed, what kind of a bond do you guys share? I've always enjoyed, even before I came to the PSL and to be around the Quetta Gladiators, I've always enjoyed Sarfaraz. One of the things that I appreciate about him, and I think maybe I'm an individual because the fact that I used to wear my heart on my sleeve, and I see Sarfaraz doing the same thing. He brings that particular passion to the game. There are times he's accused of maybe being too hard, but this is what captains do. Captains try and get the best out of the individuals who are on the field, and if the guys are not doing as well, a captain have every right to pull them up. And as we have seen over the years as well, it's an individual who is passionately involved with the game and wants to see the best, not just for himself, but also the players that he's captain. So Quetta, if you talk about Quetta Gladiators in HPL PSL 7, so do you see the team in a spot of bother right now? You are at number 5. I think you lost a very important match. Yes. It's a fact. It's a fact that we're in a spot of bother. But one should never ever forget, so long as you are competing, that you're going to have your ups, you're going to have your downs. And one of the things that I'm always passionate about, that when you are down, how are we going to get ourselves back? And this is what you can only focus on. One's got to remember that we are not playing against ourselves. We are playing against teams that are highly competitive. Yes. And being so competitive is going to be, you're going to have your ups and downs. And we've got a few games left. And the things that you could try and get home to the individuals that you are supposed to be mentoring is the fact that never to lose your belief. This is why we are all here, because we believe. And that's one of the factors that I believe we can only spread through to the Quetta Gladiators, that all things are possible if we can continue to compete as hard as we can and to believe in the talent that we have. And do you think this belief in positivity was missing in the last season of Quetta Gladiators because you weren't there because of these COVID situations and all? It happens. I think it was troubled times, I guess, not just maybe for cricketers and sportsmen and women around the world, but also for any normal citizen, that COVID did play a part in the way it did affect each and every one of us lives. But certainly it did with PSL. I think it was 6, if I'm correct in saying. But this is what it's all about. Now we are seeing that we have had some fractions of the crowd being back, which does help. Having the fans in the ground is of enormous importance to the teams that participate. So, when you see the batsmen batting in the HPL PSL, is there any particular batsman when you look at, you say, well, this is my kind of a batsman? I mean, this is what Sir Wave used to be like. Like, we've got 2 of the best T20 players right now playing. One is playing really well, Rizwan, and the other one is struggling a bit, Babar. But other than these 2, or maybe one of these 2, do you think plays closest to your style? Well, I've mentioned these 2 before. I think they're high-class performance. They've not just been doing it in the PSL, but also for their countries. When you look around, you see young Masood, who I think is a magnificent player. We saw Jason Roy just the other day smacking a few around, and we're hoping that he can get back into that sort of form again. We saw young Smeed as well, having scored. And one of the things I was quite impressed with young Smeed was the fact that when he was 99, he wasn't just looking to secure that I wanted to get a century, but he was going big in order to make sure that his team had a decent enough score. And there's so many. This PSL, in my opinion, does create a lot of excitement, and
individuals can go on from here to bigger things. Let's just broaden this question further on. Which batsman right now in this current era or age fascinates you the most? Well, I've always enjoyed the guys, who would have had a little bit of experience in red ball cricket. When you look at maybe a Joe Root, you look at all the guys, who would have participated at red ball level. I see Babar as well. And even though Babar doesn't look like he's hurting the bowlers, certainly I'm telling you, you ask the bowlers exactly, because it's an individual who can pace the field. And that to me is just saying something about the individual. Batsmanship is about finding the gaps, and Babar is certainly one of the best doing that. Yeah, absolutely. One thing that we are really missing, sir, in this PSL is the presence of the West Indian players, because they've added a lot of color and a lot of vibrance to the tournament. But this time, because we know of the international schedule and all and the commitments that are taking place. So the West Indian team is in India right now. Are you following their performance? Because they appear to be in the spot of bother for sure. Now the wins are not coming. Well, it happens, but what I know for sure is that particular team that was picked to tour India is the team that I believe is solid enough to take us on to the next World Cup, which is going to be held in Australia. Right. When you look around that team in itself, you can see the talent. And don't worry about what's happening in India at present. I think maybe the bigger picture is when we get to the T20 tournament in Australia pretty soon. Yes, and that would matter. It would be the biggest event of this year, obviously the ICC's event. But our last question for you, Sir Viv, any message for the public of Pakistan regarding cricket coming back, strongly coming back, because Australia would be touring Pakistan now? What I've always enjoyed about coming to this part of the world, it's just the support which you get from the fans. The fans, they're always engaged. There's a particular passion. And the only thing that you can ask players to do is when fans are in such support, and especially with cricket being back, hopefully on a regular basis in Pakistan, that the cricketers themselves can give that maximum support, which I know they can, and that can only raise the level of not just the PSL, but also cricket back in Pakistan again, and hopefully for the long term. Hopefully for a very long time, but thank you, Sir Viv. Thanks a lot for all your time, and we'll welcome you always with our open hearts to Pakistan. Thank you, sir. Thank you very much. I fully appreciate this. Thank you. Thank you. So this was Sir Vivian Richards, और इनसे जितनी बात करने में मज़ा आता है उतनी मतलब मुझे लगता है कि इनसे बात करते जाए मगर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हिज बिजी स्केड्यूल, और जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स अभी प्रैक्टिस से वापस आई है और उसके बाद ये टाइम दे रहे हैं, सो नहीं वैसे वाकई अभी जब सवेरा ने कंफर्म किया कि सर विव हमें ज्वाइन कर रहे होंगे, मैंने कहा यार इनसे सवाल क्या पूछेंगे, बिकॉज वो आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाती है ना शुरू, बट जब गुफ्तगू शुरू हुई द क्वेश्चंस कीप ऑन कमिंग एंड ही गिव्स सम, आई मीन ऑफ कोर्स ही स्पीक्स रियली वेल और मज़ा आया जी बात करने में। अब जरा हम बात करते हैं कल की जरा मैच के हवाले से। बिल्कुल, कल के मैच में एक कल कराची किंग्स ने कुछ जिंदगी के आसार जो है ना वो दिखाए एक और दफा फिर से। अच्छा एक और दफा, पिछला वाला भी ऐसे, बट वो लास्ट टाइम जो उनको क्रिटिसाइज किया गया था कि देखो यार इतना क्लोज मैच चल रहा है, लेकिन जो वो डग आउट है वो बिल्कुल एकदम सुन बैठा हुआ है जैसे वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। इस दफा तो ओवर हाइपर था, कुछ ज्यादा ही हाइप क्रिएट हो गई एंड इट क्रिएटेड अ बिट कंट्रोवर्सी, और जाहिर है बार बार ब्रॉडकास्टर भी जो है वो दिखाए जा रहे थे कि जी वसीम भाई काफी गुस्से में थे। अच्छा, इज अंडर प्रेशर, सी Karachi King is a team under pressure, Babar is a captain under pressure, and Wasim Akram is the coach in extreme pressure. लोग यही कह रहे हैं इतना बड़ा player वहाँ पर मौजूद है। What about the results? So कल वसीम भाई ने लगता है अपना कल गुस्सा जो है ना वो निकाल दिया। एक पैकेज आपको हम इस पे दिखाते हैं और फिर इस पे मजीद बात करेंगे। मतलब मुझे लगता है अदील के इतना बड़ा कोई इशू बनाने की जरूरत नहीं थी। एक कैप्टन, एक मेंटोर, इस वक्त बाबर आजम इज द कैप्टन फॉर कराची किंग्स, और अगर एक चीज़ ऐसी नहीं हो रही जो कि शायद उन्होंने पहले प्लान की हुई थी, मीटिंग में प्लान हुई हुई थी, और उसकी क्लैरिफिकेशन वसीम अकरम को देनी पड़ी, दो कि मुझे लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं थी। इतना टची हो गए हम बाबर को लेके, आप एक ट्वीट कर दो, बाबर के स्ट्राइक रेट पे कमेंट कर दो तो इशू बन जाता है, पूरी एक ब्रिगेड आपके पीछे पड़ जाती है। मुझे नहीं समझ आता कि क्या हम रूई में बंद करके डब्बे में डाल दें, क्या करें, क्योंकि
इफ वसीम अकरम, ठीक है वसीम अकरम का गुस्सा होना बिल्कुल बनता है, 8 आउट ऑफ 8 आपने जो है शिकस्त हासिल की है, लगातार आप हार रहे हैं। और अगर वो जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी, अगर वो एक कॉर्नर पे आके देखें, वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है, उस वक्त आप चीख भी रहे होते हैं, जरूरी नहीं आप डांट रहे होते हैं। आप जैसे उन्होंने बताया कि मैं बाउंसर्स का पूछ रहा था या स्लोअर वंस का पूछ रहा था कि हमारे फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं कर रहे हैं वो, सो इट वाजंट कि वो डांट रहे थे, ही वाज जस्ट बीइंग लाउड, मे बी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। स्टेडियम में ऑल टुगेदर आप वैसे ही इतने हाइप्ड अप हुए होते हैं, उस पे इतना शोर मचा देना मुझे समझ नहीं आता, इतने सेंसिटिव क्यों हैं लोग। जस्ट पुट इट ऑन योरसेल्फ, यानी वो जो कल मैच चल रहा था तो हम भी बड़े जज्बाती से हो गए थे, और हम भी आई मीन वो जो बिल्कुल वहां पे बैठे हुए हैं और ये चीजें देख रहे हैं, हम अपने घर में चीख रहे थे। एब्सोल्युटली एन अनवांटेड कंट्रोवर्सी। वसीम अकरम ने अपने भी ट्वीट किए और उन्होंने ट्वीट जो लिखा है वो लिखा ये है कि सरप्राइज टू सी द रिएक्शन ऑन माय टॉकिंग टू बाबर एट द बाउंड्री लास्ट नाइट, बट आई वाज सेइंग दैट why our bowlers are not bowling yorkers and slower ones outside off। ये तो हम भी पूछ रहे थे कि यॉर्कर क्यों नहीं फेंक रहे हैं ये लोग इस टाइम पे। बाबर is a wonderful boy and he tried his best and what he wants for anyway चलें जी, great। I think वसीम अकरम there's a clarification which perhaps wasn't needed, but चलें हमारे दूसरे गेस्ट प्रोग्राम के इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सवेरा, so let's बिल्कुल connect with जी, him as हमारे well। दूसरे गेस्ट दी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफ पाकिस्तान यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही मतलब सुलझी हुई बात करते हैं। यासिर से जब आप बात करते हैं तो आपको बड़ा क्लैरिटी में जवाबात मिलते हैं। सो यासिर, वेलकम टू गेम सेट मैच। बहुत शुक्रिया सवेरा और बहुत शुक्रिया अदर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो यासिर ये बताएं कि डेफिनेटली ये वैसे वो पूछने वाला सवाल नहीं, बट फिर भी पीएसएल फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं सारी टीम्स की कारकर्दगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली मैं इंग्लैंड में रह तो रहा हूँ, मगर मैं पाकिस्तान की क्रिकेट हो, पाकिस्तान की पीएसएल हो और इवन डोमेस्टिक के जो मैचेस होते हैं, मैं तमाम ही क्रिकेट पाकिस्तान की और ओवरऑल जो होती है मैं सारी ही क्रिकेट फॉलो करता हूँ। सुनी वैसे ट्वीट भी कर रहे हैं, ये भी कराची के उन लोगों में शामिल है जो कराची। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप सोशल मीडिया पे या एक्सपर्ट की एनालिसिस के लिए बैठते हैं तो जब तक आप क्रिकेट देखते नहीं है तो आप एनालिसिस कर नहीं सकते, तो इसलिए उसके लिए भी जरूरी है कि आपको एक एक चीज को फॉलो करना चाहिए। वैसे यासिर मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, बहुत सारे एनालिस्ट बगैर क्रिकेट मैच देखे ही तजदिया कर रहे होते हैं ये भी एक रियलिटी है यहाँ की, लेकिन खैर एनीवे मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊँ, एक ऐसे ही हुआ बिल्कुल जो आपने बात की कि एक हमारे एक्स क्रिकेटर थे, उन्होंने यही कहा कि उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैंने मैच तो नहीं देखा, बुरा ही खेले होंगे। मेरे ख्याल से कराची किंग्स की तो बात नहीं हो रही वैसे यू आर फॉलोइंग, अभी हम बात भी कर रहे थे और यासिर हो सकता है आप सुन भी रहे हो, कराची किंग्स ने कुछ जिंदगी के आसार जो है वो दिखाने शुरू किए हैं, लिटिल आई मीन अ बिट लेट, लेकिन एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड टू प्ले सम कंपेटिटिव क्रिकेट। काफी क्लोजली आप ज़ाहिर है पीएसएल देख रहे हैं, हम अपने हर गेस्ट से यही सवाल पूछ रहे हैं, कल लाला से भी हम यही सवाल पूछ रहे हैं, What went wrong with Karachi Kings? Was it all about the drafting? मजहर अरशद का ये कहना है कि नहीं यार उनका स्क्वाड में फिर भी डेप्थ थी, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन अब हाउ डू यू डायग्नोज द प्रॉब्लम यासिर कराची किंग्स की? देखिए मैं इसको इस एंगल से देखता हूँ, अगर आप इसकी पूरी इस साल की जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप डाइसेक्ट करें या उनका एनालिसिस करें तो उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर जो उनकी कोचिंग स्टाफ को अगर आप देखें, फॉर द लास्ट 3 years दे हैव 3 डिफरेंट कोचेस। डीन जॉन्स मरहूम जो इस दुनिया से अब चले गए हैं, वो इनका बेस्ट टाइम था जिस टाइम उन्होंने चैंपियनशिप भी जी। ये सिर्फ ये नहीं था कि चैंपियनशिप जीते थे, जो क्रिकेट जो खेल रहे थे ये लोग और जो इन्होंने ड्राफ्टिंग या साइनिंग प्लेयर्स की थी और जो उनके ड्रेसिंग रूम का माहौल उस वक्त था और जो अब था, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और उसके साथ फिर उसके बाद आप देखिए स्पोर्टिंग स्टाफ जो उनके साथ है, पीटर मोर्स को मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, वो बड़े सक्सेसफुल काउंटी के तो अच्छे कोच हैं, मगर फ्रेंचाइज क्रिकेट इज़ टोटली डिफरेंट। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्लेयर्स को आपने 5-6 हफ्ते की तो ये क्रिकेट होती है, इसमें आपने लड़कों से तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, वो थोड़ी गलती होगी। फिर बाबर आजम इटसेल्फ देखिए बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा परफॉर्म करें एज ए कैप्टन एज अ प्लेयर, मगर जब फ्रेंचाइज की बात आती है तो इट्स टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बल्कि फील किया होगा इस फ्रेंचाइज में आके, आप लोगों ने खुद भी देखा होगा उनके एक्सप्रेशन, उनकी अपनी बैटिंग की फॉर्म को लेकर कितनी वो डाउन हो गई है। तो आई होप कि ये जो इनका जो इसका इफेक्ट उन पे आया है, ये पाकिस्तान के लिए जब कप्तानी करें या जब उनके लिए खेलें तो उन पे उसका असर ना हो। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर आप देखें जो ड्राफ्टिंग की भी अगर आप बात करें, आप कंपेयर करें बाकी टीमों को, आप देखें जब लाहौर कलंदर की आप बात करते हैं तो उनके पास बॉलिंग ही अगर आप देख लें, 3 मैच विनर बॉलर्स उनके पास मौजूद हैं, हारिस, शाहीन और उसके बाद राशिद खान जैसा दुनिया का बेहतरीन। बैटिंग की अगर आप बात कर लें, उसके अलावा फिर आप मुल्तान सुल्तान की अगर आप बात करें, साइनिंग की डेफिनेटली कुछ लोग अगर बात करें कि इनके पास भी अच्छे थे, मगर आप जब बाकी टीमों से कंपेयर करते हैं तो ये वहां पे भी लैग करते हैं। तो काफी चीजें जो हैं मर्ज होगी इस पूरे इवेंट में, तो जो कि कल जो
बट यासिर जो आपने पीटर मोर्स की जो आपने बात की है, मैं बिल्कुल ज़्यादा उस पर थोड़ी सी और बात करना चाहूँगी, बिकॉज जो कनेक्ट है पीटर मोर्स का वो कनेक्ट वैसा नहीं लग रहा है। बट इस वक्त हम एक ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस कॉन्वर्जेशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with यासिर अराफात। और यासिर से डिस्कशन हो रही थी पीएसएल के हवाले से। बट यासिर, पीएसएल से थोड़ा सा हट के अगर हम ऑस्ट्रेलिया 2-2 पाकिस्तान की बात करें तो तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहाँ से भी वीडियोस आ रही हैं, लबुशैन की वीडियो शायद आपने भी देखी होगी, वहाँ से भी तैयारियों की खबरें आ रही हैं। तो तैयारियां यहाँ पे भी शुरू हो गई हैं। आज से कैंप नेशनल स्टेडियम में लग गया है। एंड बिफोर आई आस्क एनीथिंग टू यू कि उस ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए हम क्या तैयारियां करें, थोड़ी सी ज़रा तैयारियों की गुफ्तगू हम खिजर आजम हमारे कोरेस्पॉन्डेंट इस वक्त नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, और क्या हुआ है, किस किस ने अभी तक कैंप में रिपोर्ट किया है, खिजर क्या खबरें हैं? जी बिल्कुल, नेशनल स्टेडियम कराची में दौरा ऑस्ट्रेलिया के हवाले से कैंप लग गया है। टेस्ट कैंप का आगाज़ आज से हुआ है। हेड कोच सकलैन मुश्ताक, बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में कैंप में रिपोर्ट किस किस ने किया ये तो मैं आपको अपडेट करूंगा। मगर जो हेड कोच हैं सकलैन मुश्ताक, उन्होंने मुकम्मल तौर पर कप्तान बाबर आजम पर एतमाद का इजहार किया, और जो कि पीएसएल में कराची किंग्स की परफॉर्मेंस और फिर जो एक सिनेरियो बना हुआ है उसको उन्होंने कहा कि दोनों अलग तरह की क्रिकेट हैं, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वहाँ कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं बना हुआ। बाबर के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर एतमाद का इजहार किया है। जहाँ तक बात रही तारीखी दौरा है ऑस्ट्रेलिया के लिए कैंप की, तो आज इस कैंप का आगाज़ हुआ है और सुबह ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, नेट प्रैक्टिस हुई, जबकि शाम के औकात में जो है यहाँ पर बैटिंग सेशन हुआ। तो फवाद आलम ने बड़ी बारी ली, अजहर अली ने यहाँ पर हिस्सा लिया। इसके अलावा स्पिनर नोमान और साजिद खान जो हैं उन्होंने भी इसके साथ साथ इस में हिस्सा लिया। तो जो बेशतर खिलाड़ी हैं और जो रिज़र्व खिलाड़ी हैं यासिर शाह और मोहम्मद अब्बास, उन्होंने भी हिस्सा लिया ट्रेनिंग सेशन में, नेट सेशन में। तो यहाँ पर तैयारियों को जो शुरू कर दी गई हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया, जो कि तारीखी दौरा है। बिल्कुल खिजर, भरपूर ट्रेनिंग का जो शुरू हो गया है सिलसिले, फुटेजेस भी आप देख रहे थे जिस तरह ट्रेनिंग के सिलसिले शुरू हो गए हैं। बट यासिर, कमिंग बैक टू यू, ऑस्ट्रेलिया टूरिंग पाकिस्तान आफ्टर 24 लॉन्ग ईयर्स, और सब तैयारियां, सब नजरें उसी पे हैं। क्या स्पेशल करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को कि अपने घर में ऑस्ट्रेलियन टीम को काबू कर सके? देखें, सबसे पहले तो ये है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम ओवरसीज जाती है, इंग्लैंड जाती है, ऑस्ट्रेलिया जाती है, तो उनके लिए मुश्किल कंडीशंस होती हैं। पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल करता है बाउंसी और सीमिंग ट्रैक्स पे, वेरएस जब पाकिस्तान अपने होम कंडीशंस पे खेलता है, और जो अब अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान जो वो लोग हमें वहाँ पे मुश्किल कंडीशन में लेके आते हैं, तो हमें जो है यहाँ पे ऐसी पिचेस प्रिपेयर करनी चाहिए जो हमें सूट करती हैं, हमारे बैट्समैनों को, हमारे बॉलर्स या हमारे स्पेशली स्पिनर्स को जो सूट करती हैं, उस तरह की पिचेस प्रिपेयर करनी चाहिए। और हमारे स्पिनर्स रैंक टर्नर्स बना दे फुल। बिल्कुल, वो जो आपने वीडियो की शुरू में बात की वो मैंने देखी है, लबुशैन के वो स्पिन को ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें ये है कि उनके जहन में ये चीज़ मौजूद है। हर जो सेना कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, उनके जहन में ये होता है कि जब ये आते हैं एशियन कंडीशन में तो उनको स्पिनर्स को खेलना पड़ता है। तो हमें ये है कि हमारी जिस तरह नोमान अली अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, और यासिर शाह का ऑब्वियसली उनका स्ट्रगल, वो उनकी तो फिटनेस भी है, उनकी बॉलिंग भी इतनी अच्छी नहीं है। साजिद खान ने जिस तरीके से बॉलिंग बांग्लादेश में की है, तो वो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अच्छे तरीके से अटैक किया जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया को अपनी होम सीरीज में मुश्किल टाइम दे सकते हैं। यासिर, आपका आबाई शहर रावलपिंडी, सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में मैचेस भी रावलपिंडी को मिले हैं, और रावलपिंडी विकेट का जो मिजाज है वो बाकी अगर हम कराची लाहौर से कंपेयर करें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। यहाँ पे ज़रा सी सीम बॉलिंग वगैरह को भी सपोर्ट मिल जाती है, न्यूट्रलाइज हो जाएगा थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट। सो यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा क्या शहर या विकेट के मिजाज के खिलाफ विकेट बनाई जा सकती है, ये मुमकिनात में से होता है? जी बिल्कुल होता है, आप जिस तरीके की विकेट आप बनाना चाहते हैं। मगर देखिए आप मैच कब हो रहे हैं, ये अब पाकिस्तान का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में 4 मार्च को मेरे ख्याल से हो रहा है। तो उस टाइम वो जो सर्दी का आंसर या जो कहते हैं ना नमी होती है, जिसकी वजह से बॉल सीम एंड स्विंग होता है,
मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली उस टाइम खत्म हो चुका होगा। और अब आप अगर अपने मतलब की पिचेस बनाना चाहें बना सकते हैं। पास में हमने देखा कि वहाँ पे साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान बड़ा अच्छा मैच जीता, जिसमें हसन अली ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस बॉलिंग में दी, शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की, फ़हीम अशरफ ने बॉलिंग की। तो आप बनाना चाहें तो पिचेस बन सकती हैं अच्छी। बिल्कुल, मगर फिर वही है कि इतने रैंक टर्नर्स हम ना बना लें कि हमारे लड़के भी उस पर फंस जाएं। आपने नुमान अली और साजिद की बात की, बट साथ ही साथ जाहिद महमूद भी हैं उस स्लॉट में। एंड मुझे ये लगता है कि लेगी तो हर 11 का हिस्सा होना चाहिए। आप क्या अग्री करते हैं इससे? देखिए, अगर आपने जिस तरह कहा ना कि स्पिनर से अगर हम लोग खुद फंस जाए तो फिर तो हमें क्रिकेट खेलनी नहीं चाहिए ना, कि अगर हम बाहर जाते हैं हमें फास्ट बॉलर नहीं खेले जाते, अपने मुल्क में हमें स्पिनर नहीं खेले जाते, फिर तो उस हिसाब से तो फिर हमें कम्पीट ही नहीं करना चाहिए। मगर ये है कि आपके देखें जिस तरह बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखें, आपके पास अजहर अली एक्सपीरियंस्ड है, बीच में रिजवान की जो फॉर्म है, बाबर आजम है, तो आपको कॉन्फिडेंस से जाके अपने जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्पिन स्ट्रेंथ है, अपने मुल्क में जो है आपकी स्पिन स्ट्रेंथ है। और अगर रिवर्स होता है, बॉल पुराना होता है, तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी जैसे बॉलर या और भी अगर आप बॉलर्स खिलाते हैं रिवर्स स्विंग भी कर सकते हैं। तो आपने लेग स्पिनर की बात की, देखिए ये अब अगर पास में अगर आप जाएं तो आपके जो बॉलर जिस तरह साजिद की बात की, आप नहीं उनको बिठा सकते जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। और उसके साथ आप नुमान ने भी, आप बैटिंग में भी वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। तो आगे जो अनलेस एंड अनटिल कोई अनफिट होता है, जिस तरह आबिद अली की एग्जांपल आपके सामने है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से उनको प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से इंडक्ट किया गया, शान मसूद को इंडक्ट किया गया। तो ये है, अदरवाइज अगर आपका प्लेयर जो करंट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है उसको कभी भी आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और उस कंसिस्टेंसी में, उस कंटिन्यूटी में जो है वो स्क्वाड की तरह रखना चाहिए। और मुझे ये लगता है कि ये कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, कॉन्फिडेंस देती है प्लेयर्स को। जो कॉन्फिडेंस अगर किसी प्लेयर को मिल जाए, तो हमने परफॉर्मेंस देखी है जिस तरह वर्ल्ड T20 में हमारे लड़कों ने परफॉर्म किया, कोई उम्मीद नहीं कर रहा था बट किया। यही कॉन्फिडेंस शायद हमारी टीम को सबसे ज़्यादा चाहिए होगा। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं और जब वापस आएंगे तो यासिर ऑस्ट्रेलिया 2-2 पाकिस्तान के अलावा PSL में और सब कुछ क्या हो रहा है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी जारी है। ऑस्ट्रेलिया 2-2 पाकिस्तान के हवाले से भी हमारी यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं, डिस्कशन हुई। PSL के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन थोड़ी बहुत हुई और अभी और डिस्कशन करेंगे PSL के हवाले से। बट गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में आज होना है मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। बट कुछ थोड़ी बहुत खबरें ऐसी आ रही हैं कि ज़रा डिले हुआ सिक्योरिटी का। क्या क्या हुआ, क्या इश्यूज़ हैं? कादिर ख्वाजा इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है। कादिर, अपडेट आप हमें देंगे कि गद्दाफी स्टेडियम में इस वक्त क्या है, क्राउड कितना आया है, सिक्योरिटी के कुछ इश्यूज़ हैं या लेट जा रहे हैं स्पेक्टेटर्स? बिल्कुल सवेरा, गुज़श्ता जब जिस तरह 100% क्राउड की इजाज़त मिली थी, उसी तरह पाकिस्तान सुपर लीग के अभी जो मुकाबले हैं उनका सिलसिला जारी है। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज आमने सामने होंगे। लाहौर के क्राउड जो है वो सुपर चार्ज है, जबकि इस वक्त जो सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो सिक्योरिटी के अभी फुल प्रूफ इंतजाम हैं, सख्त कर दिए गए हैं गुज़श्ता रोज़ की निस्बत। क्योंकि जो शुरू के 10 तारीख से जो अभी तक जो मैचेस हुए हैं उसमें सिक्योरिटी के लैप्सेस कुछ दिखाई दिए हैं, लेकिन उस पर जो है वो पंजाब पुलिस के अफसरान जो है उनकी सरजनिश भी हुई है और उसके बाद को सिक्योरिटी जो पॉइंट्स हैं वो भी सख्त कर दिए गए हैं। ये अगर आपको मेरे कैमरामैन खुरम फयाज दिखाएं तो यहाँ पर 2 लेयर इस वक्त सिक्योरिटी है। जो रोड के दरवाजे हैं, जो निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के लिबर्टी से आते हैं दरवाजे, वो तमाम तर दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। किसी भी VVIP गाड़ी भी एंटर नहीं हो सकती। तमाम जो अफराद हैं वो बाहर उतरेंगे और वहाँ से पैदल जो है वो अंदर वॉक थ्रू गेट के जरिए अंदर दाखिल होंगे और उसके बाद उनकी 3-4 मरतबा जो है वो अंदर चेकिंग की जाएगी। पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो इस वक्त आपको अगर खुरम फयाज उस तरफ दिखाएं आपको राइट साइड पर, तो वहाँ पर शायकीन क्रिकेट एंटर तो हो रहे हैं। वहाँ पर उनको शटल बस सर्विस से जो पहले जो है वो जब आज से जो पहले है शटल बस सर्विस जो है वो अंदर जाती थी और अंदर जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं वहाँ तक उतारती थी, लेकिन आज सिक्योरिटी चूँकि हाई अलर्ट कर दी गई है और सिक्योरिटी सख्त करने के बाद आज जो है वो उनको यहाँ पर उतारा जा रहा है, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरान मौजूद हैं।
वहां से जो है वो वॉक थ्रू गेट के जरिए बड़ी तादाद में अंदर जा रहे हैं, उनकी फुल चेकिंग की जा रही है, कोई भी खाने पीने की अशिया जो है वो बिल्कुल जो है कुछ इस तरह की सिचुएशन हो गई है। वो कहते हैं ना गंजे होते ही ओले पड़ जाना, कि सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है और 100% स्पेक्टेटर्स भी अलाउड हैं। और पीसीबी की तरफ से हमें ये वर्डिक्ट जरूर आ गया है कि 10,000 स्पेक्टेटर्स ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं गद्दाफी स्टेडियम, विच मीन्स आज आपको लाहौर का क्राउड जो है वो फुल मिलने वाला है। मगर यासिर, कमिंग बैक टू यू, और पेशावर ज़ल्मी की जब मैं बात करती हूँ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम जिसकी हम हमेशा बात करते हैं, स्टैट्स के ऊपर बहुत काम करती है ये टीम, बट आज जिस तरह जो मोमेंटम दोनों टीम्स का चल रहा है, व्हाट डू यू थिंक पेशावर ज़ल्मी चैलेंज कर सकेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखें, इस्लामाबाद की अगर आप बात करें तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा टूर्नामेंट इन लोगों ने खेला। अभी थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम हो सकती है कि जिस तरीके से पॉल स्टर्लिंग पहले नेशनल ड्यूटी पे गए और उसके बाद अभी जो एलेक्स हेल की सुनने में आ रहा है कि वो फिटीक हैं बबल 22 के बबल की वजह से, वो छोड़ रहे हैं, इनको श्योर नहीं हो कि वो आज खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे। तो इस तरह की चीज़ों से जो टीम का कम्बिनेशन आता है उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वेरेज पेशावर ज़ल्मी की अगर आप बात करें, पास में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज उन्होंने की, मगर इस साल उनकी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। मगर अगेन उनके जिस तरह शोएब मलिक जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तलत और जो नया लड़का जो उनके पास हारिस आए हैं ओपनिंग में, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो यू नेवर नो कि किसी टाइम भी ये दोबारा कम बैक करके लास्ट 4 में फिनिश कर सके। यासिर, फाइनल क्वेश्चन, पीएसएल की सारी टीमों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। ज़ाहिर एक टीम तो बाहर हो गई है, बाकी पांचों जो है वो इस वक्त इन कंटेंशन है। क्या लग रहा है कौन सी दो टीमें फाइनल खेलती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, फाइनल अगर ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट को अगर देखें तो मुल्तान सुल्तान जिस प्रोफेशनल तरीके से अपनी टीम को रन कर रहे हैं, वेराज उनके कोच भी आईपीएल में ऑक्शन में गए, उसके बावजूद जिस तरीके से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, उसके साथ लाहौर कह रहे हैं मेरे ख्याल से, आई थिंक मुल्तान शायद कोई कनेक्टिविटी का इशू हो गया है, मगर लगा ऐसे ही कि वो लाहौर कह रहे हैं, मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर्स कह रहे हैं लाहौर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हैं। और जो है देखना ये कि कैसी परफॉर्मेंस लाहौर कलंदर्स की आती है। मुल्तान सुल्तान की बिल्कुल सही बात की अदील यासिर ने कि उनके कोच भी चले गए, तो ऐसा है जैसे ऑटो पायलट मोड पे अब लाहौर मुल्तान सुल्तान आ गई और मुल्तान सुल्तान परफॉर्म कर रही है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है? मुश्किल, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन जब से ये गलत साबित हुई है ना, या मेरी जब से प्रेडिक्शन गलत साबित हुई ना, मैं थोड़ा सा जरा नजर लग गई है, लोग जलने वालों ने पता नहीं क्या किया। जल्दी से बता दें। इस्लामाबाद यूनाइटेड अदील अजहर कहते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड आज का मैच जीतती है। लेट्स सी कि कौन जीतता है आज का मुकाबला, इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। बट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।